वेलकम टू माय चैनल वॉन्डरिंग सोम। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा ना स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों है? बिकॉज आई हैव टू ऑफ माई वेरी गुड राइडिंग फ्रेंड्स। I'm Shalab and I have this Interceptor for the last 2 years now. I've done about 7,700 kilometers on it. I'm Rachit Mathur. I ride Interceptor and I have almost driven 18,000 kilometers. Together we rode to Spiti. Now during the ride, मेरे पास बहुत सारे comments आए where people have been asking about the tires, about the performance of the bike. So I thought, why not do a special video only for you guys? As you would have seen, we were 3 of us and we were riding Interceptor. What could be a better situation to do a kind of a review, kind of क्या बोलूँ मैं? Feedback बोलूँ? I think yeah, feedback will be a better word. कि टायर का परफॉर्मेंस कैसा रहा. बट बिफोर वी गेट रोलिंग विद द वीडियो, हियर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, जो इनकरेजमेंट दिया ड्यूरिंग द राइड ऑफ स्पीति कॉलिंग एंड द रिस्पॉन्स दैट यू गेव टू माई चैनल वॉन्डरिंग सोम. थैंक यू सो वेरी मच. आप इसी एनकरेजमेंट को बनाए रखिए एंड ऑल दोज पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द बेल बटन सो दैट व्हेनेवर देयर इज द नेक्स्ट वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए. सो एनफ ऑफ द बिजनेस वाली बातें. नाउ लेट्स गेट रोलिंग विद द वीडियो. On wet grip, these tires are very good. I've driven at higher speeds and I've taken sharp turns on wet roads. And the grip is very secure. On gravel roads, these tires have done well. There have been times when I've experienced a slight skid on making a turn, but I kind of put that down to my lack of experience as a rider. These tires have been built for speed. They have an excellent speed rating, and on good roads, the maximum speed that I've attained was 140 kilometers. And even then, I felt that I could go faster. It's just that I didn't want to exceed that amount of speed. When I brake suddenly, the tires have an excellent grip on the road. So I'm a newbie when it comes to riding bikes. Over a period of time, especially with these tires, I learned to lean when into the turn every time I used to take a sharp turn at a higher speed, and I felt a lot of confidence on these tires when I make those turns. I have a lot of confidence on my bike, and a lot of it is thanks to the tires that I have. I feel quite secure as a rider when I'm on the roads. Over a period of time, my confidence has definitely gone up thanks to the bike and its tires. There have only been 2 occasions when I've not felt fully confident while I've been riding. One is on sandy roads and in slushy conditions. Those are the only 2 times when I actually wished I had a tire with a deeper tread. What are likely to be my next set of tires? Well, I really haven't found anything much to change what I have currently, and probably but the next would probably be the same. The cost factor obviously has to be taken in. The only thing is, if I ever do plan a trip with a lot of off-roading experience, I'd probably go for a tire with a much deeper tread. So after riding for almost 14,500 kilometers on my Pirelli stock tires, I changed to Timsun. After coming back from Spiti, I found out these tires were pretty good. They were good on tarmac roads, they are good on wet roads, but they're not that good on the gravels. So on the wet surface, it is performing absolutely brilliant. हम लोग जब स्पीति गए थे तो वहाँ पे जो ऑफ रोडिंग है और वहाँ ग्रेवल्स हैं, वहाँ पे मुझे इस टायर में थोड़ा सा ये लगा कि दे आर प्रीटी सॉफ्ट फॉर ग्रेवल टू राइड ऑन ग्रेवल्स. सो इसमें मुझे लौटने के बाद देखा काफ़ी इसमें कट मार्क्स थे विच वर नॉट वेरी डीप बट very visible. On tarmac, it is performing really well. The grip is really good, but not very good on the cornering. During cornering, I feel they little slip. थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे शायद grip lose कर रहा है on the cornering. Very recently, I went to Agra, and I drove this bike approximately 145-150, and it was performing absolutely beautiful. The grip was very good. I liked it. ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड. मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें. आई डेंट फील एनी डिफरेंस इन दी स्टॉक टायर्स और दिस टायर इन ब्रेकिंग. Pirelli में इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. इसमें ये लिटिल दे आर ब्रॉडर टायर्स एंड देयर इज़ नो वॉबलिंग एट ऑल. सो आई वाज सर्चिंग फॉर अ टायर एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट इट. सो मुझे ये यूज टायर्स किसी से मिले एंड आई थॉट बहुत कम चले हुए थे, जस्ट 2500 किलोमीटर्स, एंड दे वर प्रीटी न्यू. मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए.
अभी तो मैं इस पे टायर पे चला रहा हूँ, दे आर डूइंग गुड, बट अब जब चेंज करने की बारी आएगी तो आई एम रियली नॉट श्योर कि कौन सा टायर डाला जाए, बट आई हैव टू सर्च फॉर इट अगेन, बिकॉज आजकल वैसे ही इसमें इंपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो इम्पोर्टेड तो आ नहीं रहे हैं, तो आई माइट गो फॉर रेलको और समथिंग, आई डोंट नो, आई हैव टू सी। जब मुझे चेंज करने की बारी आई तब मैं सोचता हूँ क्या करना है। So you heard both Shalabh and Rachit talking about their tires. Now this is their opinion, and as I said, इस particular video में I will be sharing only our opinions. बाकी evaluation करना आपका काम, you make your own choices. जब आपको टायर चेंज करना हो, we are just giving you the information ताकि आप एक सही चॉइस कर सको, सही एक डिसीजन ले सको। अब मेरी बारी, and I am going to talk about Ralco. तो मैंने तकरीबन 15,000 स्टॉक पिरेली चलाने के बाद आई स्विच टू राल्को। राल्को लगाने के बाद मैं 3 मेजर टूर्स कर चुका हूँ। आई स्टार्टेड विद कसौल, उसके बाद मैंने पूरा राजस्थान किया, एंड द रिसेंटली आई डिड स्पीति। I have done little over 10,000 kilometers, actually 10,500 kilometers I have already done with my Ralco. The performance has exceeded quite a bit, multi-folds it has exceeded. मैंने सोचा नहीं था कि Ralco actually इस तरीके से perform कर सकता है। Question is, why did I choose Ralco? आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा ही होगा, where I had done videos on Ralco. Why did I choose Ralco? In case आप लोगों ने नहीं देखा, here a link, do have a look at it. It was primarily the cost issue, और उस टाइम पे मैं 30,000 25,000 का टायर लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, और मुझे लगा था that was not at all a value deal. स्पीति टूर के दौरान ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जहां पर हमें राइड करने का मौका नहीं मिला, चाहे वो स्मूथ टर्मैक हो या कंप्लीट ऑफ रोड हो या बिल्कुल पानी हो, मतलब नी डीप पानी हो, आइस हो, स्नो हो, कुछ भी बोलो, वी काइंड ऑफ रोड ऑन ईच एंड एवरी सर्फेस। द राल्को परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल। मैंने सोचा नहीं था वो इतना अच्छा काम करेगा। पानी में से निकला, कहीं पर भी नहीं फंसा, चाहे पानी हो, स्लश हो, कीचड़ हो, इट जस्ट केम आउट स्मूथ, सपोर्टेड बाय ऑफ कोर्स द पावर ऑफ द 650cc इंजन ऑफ इंटरसेप्टर। मतलब टायर ने जो जबरदस्त वाला ग्रिप प्रोवाइड करा, जो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करा, दैट इज अनपैरेलल। लेट्स टॉक अबाउट ऑफ रोड एंड द ग्रेवल्स एंड एवरीथिंग। एज यू नो, स्पीति, इफ यू आर एक्चुअली इन द स्पीति डिस्ट्रिक्ट, देर आर नो रोड्स। छोटे मोटे कहीं पर आपको पैचेस मिल जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज देर आर नो रोड्स एक्चुअली ओवर देयर। सो ये वाले हार्ड कंपाउंड ब्लॉक टायर्स वर्कड रियली वेल। जब हम लोग बाताल से, मतलब काजा से, कुंजुमला से उतरने के बाद बाताल से लेके जब हम मनाली की तरफ जा रहे थे, एक तरीके से आप ना रिवर बेड पे राइड करते हो, लिटरली रिवर बेड पे राइड करते हो। तो वहाँ पर आप गोल पत्थरों के ऊपर से राइड करते हो, इसलिए बाइक बिल्कुल ऐसे फिसलती रहती है, और जहाँ पर भी इंक्लाइन है वहाँ पर बिल्कुल धूल मिट्टी जैसा मिलेगा। सो देयर इज एब्सोल्युटली लूज सॉइल जस्ट बिलो यू। अंडर दोज कंडीशंस, दीज टायर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेव मी द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे मिला? क्योंकि जब मैं ब्रेक मारना चाह रहा था, बाइक रुक रही थी। जब मैं स्पीड पिकअप करना चाह रहा था, बाइक वाज एबल टू गेट दैट ट्रैक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। सो दीज टायर्स गिव मी द कॉन्फिडेंस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन दोज काइंड ऑफ सर्फेसेस। जब से मैंने रैल्को लगाया है, 2 सवाल मेरे से कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है, मतलब कई बार कई जगह पे ये सवाल पूछा गया है। पहला सवाल इसका स्पीड रेटिंग, कि इसका स्पीड रेटिंग P है, 150 तक का है, आप इसको हाई स्पीड नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। एंड द सेकंड इज, क्या इस पे आप कॉर्नरिंग कर सकते हो? तो उसको उल्टा आंसर करते हैं। फर्स्ट लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन, क्या हम कॉर्नरिंग कर सकते हैं? स्पीति ट्रिप से पहले मैंने कभी कॉर्नरिंग नहीं किया था, यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट ऑन अ वे बैक, मनाली वाले ट्विस्टीज, जब आप अटल टनल से निकल के मनाली की तरफ आते हो, वो जो 20-22 किलोमीटर का जो रास्ता है, और उसके बाद मनाली से दिल्ली तक का जो भी रास्ता, जो माउंटेन वाला जो पार्ट है, कीरतपुर, द काइंड ऑफ लीनिंग आई वाज डूइंग, शायद मैं पहली बार उस तरीके से लीन कर रहा था। मुझे अभी भी याद है, रचित माथुर मुझे बाद में कमेंट कर रहा था कि सर आप इतना लीन कर रहे थे, आप तो मतलब अपना फुट पैक नीचे सड़क पे घिस रहे थे। तो मैंने कहा सही में? सो उस टाइम पे मैंने रियलाइज करा कि मैंने बाइक को कितना लीन करा हुआ था। आई नो आई वाज लीनिंग, एंड माइंड इट, आई वाज लीनिंग विद द पिलियन एंड ऑल द लगेज। अब मुझे पता नहीं उसकी वजह से मेरे को एडवांटेज था, डिसएडवांटेज है, वो मुझे नहीं पता। दैट इन केस यू गाइज नो इट बेटर, प्लीज एजुकेट मी, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट इट। एंड आई वॉज एबल टू डू द कॉर्नरिंग रियली वेल। सो दैट आंसर्स द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द रेटिंग। एक बात बताओ यार, इंडिया में आपको कहाँ पर 150 या उससे ऊपर चलाने का मौका मिलता है?
मिलेगा भी तो छोटे से पैचेस में मिलता है। हाँ, आप राजस्थान में जाओ, जैसलमेर साइड पे जाओ, वहाँ पर लंबा आप थोड़ा सा खींच सकते हो, और वो भी लंबा 10-15 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। सो मुझे लगता नहीं है कि इसका पी रेटिंग होना कोई एक प्रॉब्लम है, बिकॉज with the luggage, with the pillion and everything else, when I'm touring, my average speed is anything between 110, 120, max 130, and I have been comfortably cruising at that speed. 135 I think is my top speed with Ralco. मैं 150 तक गया नहीं हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है, in case you were to exceed 150, ये नहीं कि टायर बर्स्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, not that it is recommended, but ऐसा कुछ होने नहीं वाला, you can safely go. But as I always say, on Indian roads, you should never exceed the speed limits, because आपको पता नहीं है सामने कौन सी गाय, भैंस, बाइक या ट्रैक्टर क्या आ जाएगा, और you know what could happen next. So as for the speed rating is concerned, these tires are perfectly designed for relatively higher speeds on Indian roads. So what's the bottom line of the story? My experience with Ralco has been super amazing. लेते हुए मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था ये टायर इतनी दूर तक और इस तरीके से परफॉर्म करेगा. So I wanted to go for an economical and a value deal kind of a thing. And as you know, these tires cost and somewhere between 5 to 5,500 rupees. पेयर की बात कर रहा हूँ. And the company says that this is going to last you for about 8,000 kilometers. I have, as I said, already done more than 10,000 kilometers. So आप एक वैल्यू डील तो निकाल ही लोगे कि मेरे को पर किलोमीटर कितना पड़ा इस टायर का कॉस्ट. हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ. वन थिंग दैट आई मस्ट शेयर अबाउट दीज टायर्स, बिकॉज दीज आर हार्ड कंपाउंड एंड ब्लॉक पैटर्न है. तो अगर आप मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर बाइक को रोल कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली एक फीडबैक मिलेगा आपके हाथों पे, हैंडल बार पे एक आपको फीडबैक मिलता है, वो गट 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 टाइप का एक फीडबैक आपको मिलता है. सेकेंड थिंग, एज द टायर वेयर्स आउट, इसके जो ब्लॉक्स हैं ना वो इवनली वेयर आउट नहीं करते हैं. तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, दैट आई विल डिस्कस सम टाइम एल्स, व्हाई अनइवन वेयरिंग होता है, बट ये अनइवन वेयरिंग होता है. ठीक है. सो उसके वजह से जो आपको हैंडल बार पे जो एक फीडबैक मिलता है वो थोड़ा सा और अग्रेसिव हो जाता है. कई लोगों ने बोला है कि रैल्को लगाने के बाद एक आवाज़ आती है, एक हमिंग साउंड की तरह आती है, स्पेशली फ्रंट से, जो बिल्कुल सही बात है, वो आती है. बट देयर आर प्राइमरली टू रीजंस फॉर दैट. फर्स्ट, यू कैन रीड, दो आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि जो फ्रंट टायर है, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है, फ्रंट टायर इज एक्चुअली अ रियर टायर ऑफ अ डिफरेंट बाइक. So what you need to do is you have to put it the other way around, उल्टा लगाना होता है, so that reduces the sound. और दूसरा वजह है साउंड का is the blocks. Block will make that sound. It is a hard compound. When it hits the surface, it is going to make a humming noise. मेरा next tire क्या होगा? Because now it's time for change. I'm very happy with these tires. So मेरा next change is also going to be a Ralco tire. So that's all I have for this week. आपको ये वीडियो कैसा लगा? Do share your comments and your feedback in the comment section down below. I would love to hear from you. And जाते जाते अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल Wandering Soam, do click on to the subscribe button and also click on to the bell button so that जब मेरा next video आए आपके पास एक notification आ जाए. So till we meet again with yet another interesting video, you take care, ride safe, bye.